Hello student, this is Kumar Yadav in front of you and I will teach you today very important topic and the name of topic is capacitance. Capacitance, wait कीजिए, capacitance we will start, but before starting capacitance or capacitor, we have to understand some topics and these topics are dielectrics and polarization. You are hearing about dielectric first time, but actually dielectrics are what? Insulator. Dielectrics are what? Insulators. So we know the definition of insulator. So what is the meaning of insulator? Which do not conduct electricity. For example, plastic, wood, paper and so on. These are examples of dielectrics. So if we just want to discuss about capacitance or capacitor, so why we are going to discuss about insulating things? क्योंकि इनका ही हमें यूज करना होगा. We will take capacitor and we just want to store some charge, so we require some dielectric between two conductors. तो इसलिए हमें पहले डाइलेक्ट्रिक का जनरल कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा. तो डाइलेक्ट्रिक्स एक्चुअली व्हाट? इंसुलेटर्स. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर? व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच डू नॉट हैव फ्री चार्जेस. Right, we are having some example: wood, plastic, paper. These all are the examples of dielectrics. I hope you understood this thing. Now polarization. This topic also we have to understand. Polarization means what? If we are just going to put any dielectric slab, suppose this is a dielectric insulating slab, and if I am going to place this dielectric slab in any external electric field. Suppose I just going to place the dielectric in a uniform electric field, and the name of that electric field or magnitude of that electric field is E naught, and this side positive charge and this side negative charge. Then this insulating things or dielectrics, actually सारे insulators नहीं होते हैं dielectric. कुछ insulators को हम dielectric कहेंगे. तो क्या होता है, इसकी जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. जिधर पॉजिटिव साइड है ये नेगेटिव बना लेता है, और जिधर पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव साइड पॉजिटिव और पॉजिटिव साइड नेगेटिव. तो ये क्या करता है, इफ वी आर जस्ट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इज एक्सटर्नल electric field, right? If I am just going to place any dielectric material, this is dielectric material और dielectric slab भी बोल सकते हैं. तो जैसे प्लेस करते हैं, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है उसको हम बोलेंगे IE इंड्यूस, मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज आल्सो नोन एज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका ओवरऑल क्या इफेक्ट बनता है, टोटल डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी. सो E नेट मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट माइनस ये डायरेक्शन मैग्नेटिक प्लस डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये इसका सम होगा, तो ये किस में, अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई माइनस, एंड दिस इज व्हाट E इंड्यूस्ड. सो ओवरऑल क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देता है. तो दिस वी आर गेटिंग. सो E इंड्यूस्ड मींस व्हिच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E नॉट. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज द पोलराइजेशन. पोलराइजेशन मींस व्हाट, इफ वी आर गोइंग टू प्लेस any dielectric in uniform external electric field, so it is inducing its own electric field in the opposite direction of the applied electric field. This phenomenon is known as the polarization. Okay, polarization की एक simple definition और लिखते हैं. तो polarization की definition लिखते हैं, erase कर दूं. I hope you understood this. चलिए, so polarization का हम इसको P से डिनोट करते हैं. What we are just writing symbol, that is P. P is very simple, induced dipole moment, पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो
डाइपोल मोमेंट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हमारा डाइपोल मोमेंट भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो हम सिंपल पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो कुछ ना कुछ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो कैसी हुई है? इंड्यूस्ड हुई है। इंड्यूस्ड हुई तो उसके साथ डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हुआ और जो उसका वॉल्यूम है, उन दोनों का जो रेशियो है, उसी को हमने बोला पोलराइजेशन। गेटिंग? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट? एंड एसआई यूनिट बना लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट एसआई यूनिट? कूलॉम इनटू मीटर, बिकॉज़ चार्ज इनटू लेंथ, कूलॉम मीटर अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट? कूलॉम मीटर टू द पावर -2. This will be SI unit of polarization. Yes, electric polarization. Now, DF, dimensional formula of polarization. What we are having? Coulomb. AT means IT say for electric current, ampere, and for time capital T. And this is L to the power -2. So, what is the dimension, or what are the dimensions of polarization? That is A1, E1 and L to the power -2. Yes? Okay. This information is sufficient. When we just want to discuss dielectrics, so we will discuss about capacitors, then we will discuss about dielectrics in इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम उसमें देखेंगे। इतना हमें इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। बढ़े आगे? चलिए, लिख लिया होगा तो इरेज कर देते हैं। तो हम लिखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब हेडिंग लिख लेते हैं। मेन हेडिंग जिसका आपको वेट था, तो क्या हेडिंग लिखें? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या है ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर? सो electrical capacitance of conductor is the ability to hold. It is ability to hold charges by insulated कंडक्टर। तो ये क्या होता है? किसी इंसुलेटेड कंडक्टर में चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी होती है। मतलब ये एबिलिटी कितना चार्ज स्टोर हो सकता है उसको मेजर करता है। यस, राइट? इफ Q charge is given to insulated, if Q charge is given to insulated conductor, then it acquires some potential. जब हमने Q चार्ज उस कंडक्टर को, इंसुलेटेड कंडक्टर्स जो था उसको दिया, तो उसमें कुछ पोटेंशियल क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। और क्या हमने देखा? सम पोटेंशियल V. What we observed that that given charge is directly proportional to potential created. जितना ज़्यादा चार्ज हम उस कंडक्टर को देते गए, उतना ही ज़्यादा
पोटेंशियल क्रिएट हुआ। मोर चार्ज मोर पोटेंशियल, लेस चार्ज लेस पोटेंशियल, राइट? और V is directional to Q or Q is directional to V. So there is a proportionality sign. So if we are removing this, then we have any constant and V, and this proportionality constant we are calling capacitance. यही proportionality जो constant आया उसी को हमने क्या बोला है? Capacitance. So now we are having a particular definition of capacitance. C is Q upon. So what is the definition, new definition or exact definition of capacitance? You can write it is the ratio of given charge and acquired potential due to that charge. So ratio of charge and potential is known as a capacitance. लिख सकते हैं, आई थिंक इतना लिख लेंगे। रेशियो ऑफ, लिखिए, रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू इंसुलेटेड कंडक्टर एंड क्रिएटेड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, राइट? ओके, if we are having any new quantity and the name of new quantity is capacitance, so we required what? यूनिट। अगर बिना यूनिट के हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? तो ऐसा यूनिट, पहले ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज फैराड। एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराड, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इसकी SI यूनिट और कैपिटल F यूज करते हैं, राइट? व्हाट इज 1 फैराड? 1 फैराड, 1 फैराड we can write, देखिए, in place of C we will write 1 farad. So charge is what? 1 coulomb and acquired potential or created potential is 1 volt. So what is 1 farad capacitance of any conductor? If we are giving 1 coulomb of charge to insulated conductor and due to this charge a potential difference or potential is created 1 volt, then ratio of 1 coulomb and 1 volt is known as a 1 farad. And this is very big unit of the electrical capacitance of conductor. तो हम इसको एज अ प्रैक्टिकल में नहीं यूज करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी लार्ज अमाउंट। अभी हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो देखिए, तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड. These are practical units of capacitance. So what is this? 10 to power minus 6 farad, 10 to power minus 3 farad, 10 to power minus 12 farad, and 10 to power minus 9 farad. These are all other units or practical units of capacitance of कंडक्टर. कंडक्टर को हम आगे जाके अभी कैपेसिटर भी बोलेंगे. क्या कैपेसिटर है? वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन नेक्स्ट वीडियो. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ओनली जनरल थिंग्स. अंडरस्टूड? ओके, लिख लिया ना? राइट. अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल, लिखिएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल capacitance of isolated spherical conductor. Right? If I am taking any isolated spherical conductor, ये लीजिए मैंने spherical conductor लिया and the radius of that conductor is capital R, right? ये solid भी हो सकता है और hollow भी हो सकता है. If I am giving Q charge, so all charge will ripple and it will reach to surface. सारे के सारे charges ripple होकर कहाँ चले गए?
सरफेस पर चले गए एंड आई एम जस्ट टेकिंग दैट टोटल चार्ज इज q. yes, so now the charge will just appear, they are just on the center, so they will create electric field, yes, and electric potential also. And if we just want to calculate potential at the surface, now the charges, if just want to calculate potential at surface at point P, so सारे के सारे चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, जैसे वो कहाँ पर रखे हो, सेंटर में रखे होंगे. Now potential of charge q on the surface of spherical conductor और कैपेसिटर. राइट, क्या होता है कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं है, अभी हम पोटेंशियल की बात करते हैं. पोटेंशियल क्या होगा, दी चार्जेस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हम एयर और वैक्यूम में एज्यूम करेंगे. इसमें टोटल चार्ज क्या है, q, और r क्या होंगी, जो रेडियस है वही डिस्टेंस होंगी, सॉरी q अपॉन r. इलेक्ट्रिक फील्ड में हम q अपॉन r स्क्वायर लिखते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम q अपॉन r लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा. यस, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, नाउ डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. क्या होती है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, अभी हमने देखी है, रिकॉल करो बच्चों. तो q इज c इंटू v, so c इज इक्वल टू q अपॉन v, राइट ना. वैल्यू पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं. सो इफ विल पुट द वैल्यू हियर, चलिए इरेज कर दूं, बोर्ड इस छोटा है थोड़ा तो बार बार इरेज करना पड़ रहा है. आप नोट करते जाइए, अदरवाइज आप इसको रिपीट पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. चलिए इतना हो गया. अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देना है. तो नाउ व्हाट वी आर हैविंग कैपेसिटेंस q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. yes or no? So this will cancel. Now remaining things will reach to in numerator 4 pi epsilon naught r. This is a mathematical expression for spherical conductor or capacitor, and this is very useful also because you will see some problem which is very much close to this formula. तो इसलिए ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं. अब देखिए, अगर मैं कंसीडर करूं, चलिए इतना लिख लिया, ओके. इस पर एक न्यूमेरिकल समझते हैं और ये समझते हैं कि ये टोटल चार्ज किस पर डिपेंड करता है. मतलब ओवरऑल ये, अगर हम बात करें कि किसी कैपेसिटर या कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है, तो 1 फैराड बहुत ज़्यादा होता है. तो कैसे पता चलेगा ज़्यादा होता है, तो देखते हैं. देखिए, लेट C इज 1 फैराड. यही फॉर्मूले में अगर हमने सपोज किया कि कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैराड है, एंड वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, और यहाँ पर यूनिट कुछ होती है, अभी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है हमें. और r हमें बताना है कि वो कैपेसिटर कितना बड़ा हम स्फेरिकल बनाए कि उसकी रेडियस हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 1/9 × 10⁹. तो वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में. तो हमें क्या मिल जाता है, देखिएगा, ये 1 हो गया और 1 × 9 × 10⁹ आ गया. यस ना, इसकी वैल्यू ये आ जाती है, और यहाँ पर ये कितना आ जाता है, r. यस, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की. चलिए ये मैं इसके प्लेस पर यहाँ कर दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ये कितना है, 1 ही है. इसकी वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹, और ये हमें r चाहिए कि कितना रेडियस चाहिए.
मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 10 पावर 9। क्या निकाल रहे हैं हम? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब रेडियस, मीटर में आया तो रेडियस कितनी आई? 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। और अगर थोड़ा सा देखें तो 9 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर। क्या बताइए, क्या हम इतनी बड़ी रेडियस का कैपेसिटर बना सकते हैं? सोचिए सोचिए, जबकि हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे भी ये बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इतना बड़ा कैपेसिटर बनाना या कंडक्टर इतना क्रिएट करना जो चार्ज को इतना होल्ड कर ले 1 फेरेड? नो, इट इज प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी कैन, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है 1 फेरेड ऑफ चार्ज और 1 फेरेड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर इज वेरी वेरी लार्ज अमाउंट। तो देयरफॉर हम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट क्या करते हैं? माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड और नैनो फेरेड और पिको फेरेड इस टाइप से यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आल्सो। ओके, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे हम लिख देते हैं फैक्टर्स, इसी में लिख देते हैं फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा? तो वेरी फर्स्ट फैक्टर हमारा ये हो जाएगा साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। ये हम किस टाइप का और किस साइज का और शेप का हम कंडक्टर ले रहे हैं या कंडक्टर्स ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2 कंडक्टर्स लेने होते हैं। ओके, तो उस पर डिपेंड करेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये सारी चीजें हम समझ लेंगे, बट इन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। ओके, सेकेंड, मीडियम। अभी हमें 2 कंडक्टर्स लेने होंगे, तो मीडियम कौन से लेने हैं? डाइलेक्ट्रिक। गैप बिटवीन द कंडक्टर्स। 2 कंडक्टर्स लेंगे, उससे हमें एक कैपेसिटर बनेगा, तो उसमें हम जो मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। थर्ड, इट विल ऑल्सो डिपेंड उस कैपेसिटर और जो पेयर ऑफ कंडक्टर्स है उसके पास में कौन सा कंडक्टर रखा है। सो नेवर कंडक्टर and so on. So overall, what topic we discussed about electrical capacitance of conductor. So I hope you understood this thing. Okay, तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, then if you have any doubt, so you can ask doubt in comment box. Okay, so see you, bye bye, thank you.